Good morning, students. How are you? Fine. Today we will do some remaining questions of exercise 8.2. Next question is question number 6. In this question, convert the given percent to the decimal and the fraction. Fraction और decimal दोनों में convert करना है. So in the part number A, what is given? In the part number A, 25%. 25% can be written as 25 upon 100. So this is the fraction form. इसको minimize करना है. Now it should be also written in the form of decimal. Decimal की form में भी इसे convert करना है. तो इसे अगर हम decimal में convert करते हैं, so what is the value? 0.25. Now this is the value in the decimal. In the minimum form, 25 upon 100 can be written as 25 ones are 25, 25 fours are 100, 1 upon 4. So हमने 25% को both केस में रिप्रेजेंट किया. This is the decimal form and this is the fractional form, simplest fractional form. Okay, so similarly we have to convert all other parts. In the part number B, 150% is equal to 150 upon 100. If you want to convert in the decimal form, then write it as 1.50. सिंपली हमने फ्रैक्शन में पढ़े थे, कैसे फ्रैक्शन और डेसिमल आपने पढ़े थे, हम कैसे कन्वर्ट करते हैं इनको डेसिमल में. कितनी जीरोस हैं एक बार रिवाइज कर लेते हैं. 2 जीरोस हैं तो 1 और 2 के बाद हमारा क्या लगेगा? डेसिमल पॉइंट. इसे हम लिख सकते हैं 1.5 also, and this is the decimal conversion. For the fractional, simplest fraction form, and the fraction form इसकी क्या होगी? 150% can be written as 150 upon 100. 0 से 0 cancel, 5 2s are 5 3s are 3 upon 2. okay, सिंपली इसे भी आप यहां लिख सकते हैं दोबारा से. ओके, नाउ 20% को हम कैसे सॉल्व करेंगे? 20% को डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करो पहले. सो 20% इज इक्वल टू 20 अपॉन 100. 20 अपॉन 100. यहां से 10 से 0 कैंसिल, 0.2. नाउ इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन, फ्रैक्शन के फॉर्म में 20% को हम क्या लिखेंगे? 20 अपॉन 100. 21 are 20, 25 are 100, 1 upon 5. So it is easy to convert. You can now convert 5% by yourself also. Well, if we want to convert it, 5% को डेसिमल में कन्वर्ट करना है. So डेसिमल कन्वर्जन में हमारे पास क्या होगा? 5% इज इक्वल टू 5 अपॉन 100. और इसे कन्वर्ट करेंगे डेसिमल पोर्शन में तो 0.05. इजी है. नेक्स्ट वन इज अ फ्रैक्शन. 5% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है 5 अपॉन 100. सो 1 अपॉन 20. ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7. Now come to question number 7. In a city, 30% are female and 40% are male, and the remaining are children. So what percent are children? We can see here, so total is considered to be 100%. Total is considered to be 100%. This is the total, out of which 30% are female, 40% are male, and what rest of are children. हम सपोज करते हैं कि जो कंप्लीट है वो 100% होता है, उनमें से 30% फीमेल हो गई है, 40% मेल हो गए हैं.
सो रिमेनिंग क्या हो गया, मैंने इसके रिलेटेड आपको क्वेश्चन भी कराया था। सो आप यहां देखिए फीमेल्स, फीमेल्स पॉपुलेशन कितनी है, परसेंटेज लगा लो, फीमेल्स परसेंटेज इज इक्वल टू 30%, मेल्स परसेंटेज इज इक्वल टू 40%. So children percentage is equal to 100% minus female percent minus males percent. Okay, so total is 100 minus 30 minus 40. What we get? 100 minus 70. It is equal to 30. So children percentage कितनी आई? 30%. So overall it is about percentage. Okay. Now this is your question number 7. Now question number 8. In a constituency, out of 15,000 voters in a constituency, 16% voted. 16% पर्सन ने वोट किया. फाइंड द परसेंटेज हु डिडंट वोट. ऐसे कितने परसेंट लोग हैं जिन्होंने वोट नहीं किया. कैन यू फाइंड हाउ मेनी एक्चुअली डिडंट वोट. कितने लोग हैं जिन्होंने एक्चुअली वोट नहीं दिए, उनकी अमाउंट भी बताना है. नाउ द सॉल्यूशन इज टोटल वोटर्स in given constituency. So हमारे पास कितने वोटर्स हैं? 15,000 वोटर्स. परसेंटेज हु वोटेड, कितनी परसेंट है जिन्होंने वोट दिया? 60%. Percentage who didn't vote, did not voted is equal to what? हमारा टोटल कितना होता है? 100%. सो 100% में से 60% ने वोट दिया, तो कितनों ने वोट नहीं दिया? 100 माइनस 60, 40% पीपल्स ने वोट नहीं दिया. सो नाउ नंबर ऑफ वोटर्स who actually didn't vote. Who didn't voted. Okay, ऐसे कितने पर्सन्स हैं? Is equal to 40% of 15,000. जो टोटल वोटर्स हैं उनका 40%. So it will be equal to 40 upon 100 multiplied by 15,000. 2 zeros से 2 zeros cancel out. 15 fours are 60 and then 2 0. It means 6,000 pupils are there who didn't vote for anyone. Okay. Question number 9. Meeta saved rupees 4,000 from her salary. If this is 10% of her salary, this is just 10%. What is 10%? This 4,000 is the 10% of her salary. Then what is the salary? तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? Let Meeta's salary is equal to X rupees. मीता की सैलरी कितनी है? X rupees है. सो हमें पता है उसकी सेविंग कितनी है. हर सेविंग इज इक्वल टू व्हाट? 10% ऑफ सैलरी, विच इज इक्वल टू व्हाट? 4,000. ये अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 10% ऑफ हर सैलरी इज हर सेविंग एंड विच इज इक्वल टू 4,000. सो हम यहां पर ये कंसेप्ट यूज करेंगे कि 10%
ऑफ सैलरी कितनी है हमारे पास, x of x is equal to what, 4000. This is just according to question. Okay, so 10% means 10 upon 100. Of means multiply x is equal to 4000. So now 0 से 0 cancel, x is equal to 10 multiply हो जाएगा इधर. So what we get, 4000 into 10, it will becomes 40,000 rupees, 40,000. Okay, is the salary of the Meeta. Now come to next question. Now question number 10. A local cricket team played 20 matches. A local cricket team played 20 matches in the one season. It won 25% of them. How many matches did they win? So इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, टोटल मैचेस कितने हैं, टोटल मैचेस प्लेड बाय लोकल क्रिकेट टीम इज इक्वल टू 20 मैचेस. सो टोटल 20 मैचेस हैं. We have only 20 matches, out of which we wins 25%. So winning percentage कितनी है, is equal to 25%. यानी कि out of total matches 25% matches were won. So number of matches that they won is equal to 25% of 20 मैचेस. 20 मैचेस में से 25% उन्होंने विन किया है. वैसे कभी भी आपके पास आ जाए 25%, तो इसका मतलब होता है 1/4 ऑफ द गिवन. 50%, 25% का मतलब क्या है, 1/4 ऑफ दैट. 50% का मतलब है हाफ ऑफ दैट, जो भी अमाउंट हमारे पास गिवन है. 100% मीन्स इट्स ए कंप्लीट नंबर, यानी कि जो भी नंबर हमारे पास गिवन उसे 1 से मल्टीप्लाई करना है. 50% के लिए 1/2 से और 25% के लिए 1/4 से. वैसे भी अगर हम इसे कन्वर्ट करते हैं तो 25% मीन्स 25/100 मल्टीप्लाई बाय 20. कैंसिल करेंगे तो 1/4 होगा. सो हम इसे डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं. अगर एक्सप्लेनेशन के साथ आता है तो हमें ऐसे ही सॉल्व करना है, बट आपके पास एमसीक्यूज में आ जाता है तो आप इसे डायरेक्टली ऐसे डील कर सकते हैं ताकि आपका टाइम कम लगे, जल्दी सॉल्व हो. सो 1/4, 4 1 जा 4, 4 5 जा 20. सो 5 मैचेस. यहां पर हमारे पास आंसर क्या आया, 5 मैचेस. तो टोटल हमारे पास 20 मैचेस थे एंड आउट ऑफ विच वी वॉन 5 मैचेस. सो दीज आर all 10 questions of exercise 8.2. Now 8.2 exercise is complete. Now solve this complete exercise in your fair notebook and then send to me. अगर आपको कोई भी क्वेरी हो इनसे रिलेटेड किसी भी क्वेश्चन में तो मुझे जरूर मैसेज करें, और कुछ मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आपको भेजता हूं तो प्लीज उन्हें सॉल्व करें. दे आर वेरी रिलेटेड टू योर एजुकेशन कैरिकुलम्स. प्लीज send your all the assignments and homeworks regularly. Okay, so these are some assignment questions that you have to do and send the solution to me. So your question number 1 is find 50% of 200. आपको 200 का 50% फाइंड करना है. What percent of 200 is 100? 200 का कितना परसेंट है, 100 जो है वो 200 का कितना परसेंट है. क्वेश्चन नंबर 3, 50% ऑफ विच क्वांटिटी इज 100. किस क्वांटिटी का 50% 100 होगा. पार्ट नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, कन्वर्ट 0.35 टू परसेंटेज. आपको दिस डेसिमल को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है. क्वेश्चन नंबर 5, कन्वर्ट 3:1/5 टू परसेंटेज. इसको मिक्स फ्रैक्शन है आपके पास, पहले इसको आपके फ्रैक्शन बनाना है
then convert it into the percentage. Okay. Question number 6. A student secured 360 marks in an examination. किसी एग्जाम में 360 मार्क्स आते हैं किसी स्टूडेंट के. ओके. His percentage is 60%. उसने जितनी परसेंटेज गैदर की वो कितनी है 60%. फाइंड द मैक्सिमम मार्क्स. तो उसके मैक्सिमम मार्क्स कितने थे. इट मीन्स कितने मार्क्स का 60% 360 होगा. ओके. Now and you have to solve all the questions and send the solution to me. Okay. Thank you.